Hello guys, welcome back to the another video and welcome back to the my channel of RTL Forge. I will explain our Verilog project is a UART protocol. What is UART and how this work and full form of UART. Let me some explain one by one and step by step. Firstly, what is a UART name of full form? Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. This is the full form of UART protocol. These are top level UART provided in UART transmitter, UART receiver and bond generator. These are three modules included in all top level UART. First is a UART transmitter TX, UART receiver RX and bound rate generator. What is TX run, how it is work, and UART RX run and bound rate generator run. Let me some explain step by step. Firstly, explain what is bounded generator. Bounded generator is a generate the frequency of 15 mega kilohertz, and bound is our 96,000, मतलब कि बाउंडेड जनरेटर है वो एक टिक बाउंड टिक करके एक पिन आती है वो जनरेट करता है बेसिकली। वो बाउंड टिक पिन है वो टीएच को दी जाएंगी और आरएक्स को। वो मतलब कि क्या करता है बाउंटिंग जनरेटर, मतलब कि कोई भी डेटा आ रहा है, मतलब यूआरट और रिसीवर बेसिकली वर्क क्या करते हैं कि यूआरट टीएक्स है वो पैरेलल टू सीरियल करता है डेटा को, और जो आर एक्स है वो सीरियल टू पैरेलल करता है। देन बाउंटिक क्या क्या करता है, वो क्लॉक के हिसाब से टाइमिंग प्रोवाइड करता है। वो कैसे कि बाउंटिक इज इक्वल टू 1 बिट का अगर कोई दे रहा है वो डेटा, तो 1 बिट अपॉन 96,000 अगर बाउंड रेट, तो इज इक्वल टू 1.4 समथिंग, तो 104 समथिंग जो टाइम है उस पर वो डेटा चला जाएगा। दिस इज अ बाउंडेड जनरेटर प्रिंसिपल। Let me some explain the UART transmitter and UART receiver. UART transmitter is generate the provide the data is equal to 8 बिट। ये पूरा जो प्रोटोकॉल है वो 8 बिट पिन पे डेटा पे रन करता है। और जो UART transmitter TX is a parallel to serial converter, and UART receiver is a receive to serial to parallel converter. Let me some explain one by one. Provide some bounded generator is a clock and reset pin, input pin and output pin our bound tick. Let me some explain your transmitter. Firstly, this is our input buffer, provide some tx data and tx start data. Provide 8 bit data in our input buffer and go to the via input buffer to the parallel to serial converter is a parallel data and a serial converter, and go to the transmitter and shift register equal to 10 bit, and then output become a tx serial out, and this tx serial output is our provided serial input in our rx. लेट मी सम एक्सप्लेन ट्रांसमिट द शिफ्ट रजिस्टर अवर 10 बिट, मतलब कि 10 बिट कैसे होगा कि आपने तो 8 बिट का डेटा डाला है। दिस अवर यूआर्ट फ्रेम फॉर्मेट, कि इस फॉर्मेट के अंदर वो डेटा ट्रांसफर करता है ट्रांसमीटर टू रिसीवर। 8 बिट डेटा, दिस अवर एक्चुअल डेटा बिट इज अवर 8 बिट, एंड वन स्टॉप बिट प्रोवाइड 0 एंड स्टार्ट बिट प्रोवाइड 0 एंड स्टॉप बिट प्रोवाइड 1। दिस अवर सिंपल फ्रेम फॉर्मेट ऑफ द डेटा, एंड इस तरह से डेटा जाएगा। अगर दिस एग्जाम्पल ऑफ द 10 1 डबल ज़ीरो एंड 110, दिस अवर एल एस बी फर्स्ट, मतलब कि ऑलवेज जो डेटा फॉर्मेट है एल एस बी है, वैसे वो डेटा शुरू करता है रीड करने के लिए। देन 1 0 1 0 1 1 एंड 0, दिस अवर आइडल स्टेट, स्टार्ट स्टेट, स्टॉप एंड देन आइडल। आइडल में कोई भी रन होगा, फिर स्टार्ट होगा ट्रांसमिशन, फिर स्टॉप होगा एंड फिर आइडल में चला जाएगा। दिस अ सिंपल डेटा फॉर्मेट अवर यूआर्ट प्रोटोकॉल। Let me some explain our signal provided our all transmitter to receiver provide the clock and reset signal, asynchronous reset signal, tx start 1, tx data is your actual data 8, and rx data is equal to actual data is 8, and this is tx, this is not rx. tx is one output of our transmission line for the transmitter, and rx is equal to input for the go to the transmitter line,
and provide some input in our RX. And this our RX, let me some explain our what is RX प्रिंसिपल वर्क. RX जो है वो डेटा को वो जो सीरियल देखो ट्रांसमीटर में से डेटा आ रहा है उसको वो पैरेलल टू सीरियल किया, फिर सीरियल पैकेट को ये सीरियल इनपुट करेगा स्टार्ट बीट एंड डिटेक्ट सिंक्रोनस के साथ. और बाउंड जनरेटर के अंदर वो मैंने बोला था बाउंड टिक कर का जो क्लॉक है वो प्रोवाइड करेगा. एंड देन रिसीवर शिफ्ट रजिस्टर प्रोवाइड द 10 बिट, मतलब कि वो डेटा तो 10 बिट में वो उसको रिसीव करेगा और देखेगा और उसको सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करेगा और बताएगा दिस RX डेटा इज इक्वल टू आउटपुट. एंड वो एक्चुअल होगा जो डेटा आपने डाला है वही होगा. तो RX इज इक्वल टू प्रोवाइडेड डन पिन इज हाई. दिस इज सिंपल प्रिंसिपल वर्क in UART protocol. This is a module bounded generator UART TX and UART RX and top. This is a feature of 8-bit data bit वगैरह करता है. 1 स्टार्ट बिट एंड 1 स्टॉप बिट है. हम यहाँ पे असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है क्योंकि असिंक्रोनस रीसेट पिन का यूज़ कर रहे हैं. एंड कॉन्फ़िगर ऑफ द बाउंड रेट. लेट मी सम explain our Verilog code in EDA playground. This is a simple code declaration of bounded generator, UART transmitter and UART receiver. Let me some one by one explanation. First is our bounded generator. Provide the module name and module name of a UART bounded generator. The parameter of the clock frequency and bound rate. This our frequency of clock is equal to 15 kilohertz and bound rate is equal to 96,000 and the frequency of 50 megahertz, sorry, not is 50 kilohertz. Input wire clock and reset and output is basically बाउंड टिक प्रोवाइडेड. बाउंड टिक क्या करेगा मैं इसमें अब मैं बताऊंगा कि जब भी लोकल पैरामीटर इंटीजर ऑफ द बाउंड काउंट मतलब कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 एंड बाउंड रेट इज इक्वल टू वो फिक्स है वो जो है 96,000 वही, तो उसको काउंट करके रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देगा. लेट मी सम एक्सप्लेन दिस अवर एक्चुअल कोड रन इन माय बाउंडेड जनरेटर कोड. Provide some always clock, posage clock, provide because this is not flip flop use or negate clock. एंड इफ़ एंड एल्स कंडीशन प्रोवाइडेड. इफ़ कंडीशन रिसेट में अगर कोई भी रिसेट कंडीशन है तो काउंट इज इक्वल टू 0 एंड बाउंड टिक इज इक्वल टू 0 एंड देन रिसेट इज इक्वल टू 1 एंड देन कंडीशन इज अवर रन. लेट मी सम एक्सप्लेन. द काउंट इज इक्वल टू बाउंड काउंट इज इक्वल टू -1, count is equal to 0 and bound tick is equal to always 1 and then count is equal to count plus 1 and bound tick is equal to 0. let me some explain. count में क्या है कि बाउंड काउंट वो आ रहा है. लेट में सम एक्सप्लेन 50 ये शायद वो था कि 50. लेट मी सम एक्सप्लेन बाउंड काउंट. Let me some explain our बाउंड काउंट इज इक्वल 5208. प्रोवाइड द 5208 -1 5207 हो जाए तो उस अगर कोई भी हो जाए बाउंड काउंट इज इक्वल टू 3 ले लो तो 3 - 2 जो 2 तो 2 जो 2 डेटा आएगा उस पर वो बाउंड टिक हाई कर देगा. एंड दिस कंडीशन ऑफ द +1 कंडीशन प्रोवाइड द 1 + 1 इज इक्वल टू 2. अगर 2 डेटा आएगा तो उस पर बाउंड टिक हाई ना वरना 0 कर देगा. दिस इज सिंपल कंडीशन ऑफ बाउंड टिक रन बाउंड टिक जनरेटर. लेट मी सम एक्सप्लेन यूआर टीएक्स. बेसिकली यूआर टीएक्स क्या करता है मैंने समझाया अपने ब्लॉक डायग्राम के कि बाउंड टिक वो उसको इनपुट देगा फिर क्लॉक एंड रिसेट तो ही फिर उसका एक्चुअल डेटा एंड स्टार्ट ऑफ दी टीएक्स लाइन एंड देन आउटपुट इज इक्वल टू टीएक्स एंड टीएक्स इज इक्वल टू बीजी. मतलब कि टीएक्स डेटा आ गया तो टीएक्स बीजी है. दिस इज सिंपल पिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है. दिस इज नॉट अ बेसिक इसके बहुत खास पिन नहीं है. दिस इज सिंपल पिन और टीएक्स बीजी. रजिस्टर प्रोवाइड द डेटा. रजिस्टर इज इक्वल टू 8-bit एक्चुअल डेटा एंड अ बिट और 4-bit बिकॉज दिस ओवर 8-bit काउंट करेगा इसलिए ऑलवेज द प्रोसेस क्लॉक अलाउ टीएक्स इज इक्वल टू 1 बीजी इज इक्वल टू 0. मतलब कि अभी रीसेट कंडीशन है तो बीजी 0 होगा. बीजी 1 का मतलब हो गया कि कंप्लीट हो गया. 0 का मतलब भी कंप्लीट हुआ नहीं है. इज द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन और लाइन टीएक्स इज इक्वल टू स्टार्ट एंड टीएक्स इज इक्वल बीजी
प्रोवाइड टी एक्स बिजी इक्वल टू अभी जीरो है तो टी एक्स स्टार्ट होगा ही नहीं। टी एक्स स्टार्ट जो है अपना एक्चुअल डेटा वो टी एक्स डेटा को देगा टी एक्स बिजी इक्वल टू 1 एंड बीट काउंट इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से अपना स्टार्ट बीट शुरू हो रहा है टी एक्स इज इक्वल टू 0, अभी लो हो रहा है तो अभी सेंड द डेटा होगा अपने बिट्स के रूप में जो टी एक्स इज इक्वल टू एंड बाउंड टिक इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन जब भी राइट होगी तभी वो बीट काउंट है वो 8 बीट के 8 बीट का जो काउंट है वो काउंटर शुरू करेगा बीट देने के सेंड करने के लिए डेटा के रूप में। जब बीट काउंट इज इक्वल टू 7 लाइक 8 से कम ही हो 7 एंड वो टी एक्स के रूप में कैसे स्टोर होगा कि डेटा रजिस्टर इज इक्वल टू 0 एंड बीट काउंट इज इक्वल टू 7, इसके रूप में वो टी एक्स को डेटा वो स्टोर करेगा। एंड देन स्टॉप बीट मतलब कि अभी यहाँ पे स्टॉप करना है तो टी एक्स को हाई कर दो एंड सिंपली दिखा दो कि दिस कंडीशन इज अवर बिजी दिखा दो एंड बीट काउंट अपना जो है 7 वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड देन मॉड्यूल यू आर्ट रिसीवर, तो यू आर्ट रिसीवर क्या करेगा कि दिस प्रोवाइड द इनपुट वायर, this rx is our output of tx, okay, and this clock and reset provide bound tick provided and output register provide the rx data and rx run। जैसे tx data tx busy था ऐसे rx data and rx done यहाँ पे दिया हुआ है। It means some explain one by one। register provide the data and register beat count is our 8 bit data and receiving दिस रजिस्टर इज रिसीविंग मीन्स रिसीविंग का मतलब यहाँ पे ये लाइन मैंने ऐड करी है कि रिसीविंग का मतलब क्या है कि वो रिसीव हो चुका है और रिसीविंग 1 होगा तो रिसीविंग नहीं हुआ है अभी उसके लिए, अभी रिसीविंग 0 तो मतलब दिस इज अवर रिसेट कंडीशन प्रोवाइड ऑल डेटा वैल्यू इज अवर 0। Let me some explain one by one condition। Firstly, rx done normally remains is equal to 0, rx done is equal to 0। detect the start bit, यहाँ से डिटेक्ट करने की शुरू करेंगे जब रिसीविंग पॉइंट 1 है एंड rx इज इक्वल टू सॉरी रिसीविंग पिन 0 है एंड rx इज इक्वल टू भी 0 है तो रिसीविंग इज इक्वल टू 1 एंड बीट काउंट इज इक्वल टू अवर एक्चुअल डेटा ऑफ 7 जो मैंने ऊपर समझा था वो 7 डेटा। रिसीविंग डेटा कैसे स्टोर करेगा वो तो आ रहा है कि 7 मतलब 7 है तो 8 9 के रूप में आ रहा है वो डेटा, क्योंकि मैंने बताया कि 8 बीट का जो डेटा और एक्चुअल डेटा तो 10 बीट का वो करेगा अगर स्टार्ट कंडीशन एंड स्टॉप कंडीशन लगाए तो उसको रिसीव कैसे करेगा। रिसीव कंडीशन इज ओवर 1 एंड बाउंटिक इज इक्वल टू 1 प्रोवाइड सम बीट काउंट इज इक्वल टू 8 तो उसको रिसीव करेगा वही प्रिंसिपल पे जैसे मैंने आगे समझा कि डेटा रजिस्टर इज इक्वल टू 0 और बीट काउंट इज इक्वल टू 7 दिस ओवर rx डेटा, मतलब कि rx डेटा के अंदर वो डेटा स्टोर हो चुका है। एंड देन बीट काउंट इज इक्वल टू बीट काउंट प्लस 1, अगर कोई भी ऐड करना है तो वो ऐड कर देगा बीट काउंट के अंदर एंड प्रोवाइड सम एल्स कंडीशन स्टॉप ऑफ द बीट एंड यहाँ पे rx इज इक्वल डन इज इक्वल टू हाई एंड बीट काउंट इज इक्वल टू एक्चुअल डेटा मतलब जो 7 है वो यहाँ पे मिल गया, बीट काउंट भी हाई हो चुका है एंड rx डेटा है वो अपना डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। दिस इज द सिंपल वेरी लो कोड डेवलप माई EDA प्लेग्राउंड एंड all the 3 module explain easily bounded generator, transmitter and receiver, and this is the end of the session. Thank you guys.